أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. ترجمہ آیت الکرسی. اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ آپ زندہ اوروں کا قائم رکھنے والا. اسے نہ اونگ آئے نہ نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے. جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے. اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہے آسمان اور زمین. اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی اور وہی ہے بلند بڑائی والا. تفسیر آیت الکرسی. اس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کے ایک ہونے کا بیان ہے. اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں. حدیثوں میں اس کی بہت سی فضیلت آئی ہے. یعنی واجب الوجود اور عالم کا ایجاد کرنے والا اور تدبیر فرمانے والا. کیونکہ یہ دوش ہے اور وہ دوش اور عیب سے پاک ہے. اس میں اس کی مالکیت اور حکم کے لاگو کرنے کی شکتی کا بیان ہے. اور بہت ہی سندر انداز میں شرک کا رد ہے کہ جب ساری دنیا اس کی ملک ہے تو شریک کون ہو سکتا ہے. مشرک یا تو ستاروں کو پوجتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں یا دریاؤں پہاڑوں پتھروں اور درختوں اور جانوروں وغیرہ کو کہ جو زمین میں ہیں. جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے تو یہ کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتے ہیں. اس میں مشرکوں کا رد ہے جن کا گمان تھا کہ مورتیاں سفارش کریں گی. انہیں بتا دیا گیا کہ کافروں کے لیے سفارش یا شفاعت نہیں. اللہ کے دربار سے جنہیں اس کی اجازت ملی ہے ان کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. اور اجازت والے نبی فرشتے اور ایمان والے ہیں. یعنی گزرے ہوئے یا آگے آنے والے دنیا اور آخرت کے کا. اور جن کو وہ مطلع فرمائے وہ نبی اور رسول ہیں. جن کو غیب پر سوچت فرمانا ان کی نبوت کا پرمان ثبوت ہے. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا لا یجہروا علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. یعنی اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. خاجن اس میں اس کی شان کی عظمت کا اظہار ہے. اور کرسی سے یا علم اور क्षमता مراد ہے یا عرش یا وہ جو عرش کے نیچے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. اور ممکن ہے کہ یہ وہی ہو جو فلک البروج کے نام سے مشہور ہے. اس آیت میں الہیات کے اونچے مسائل کا بیان ہے اور اس سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اپنے اللہ ہونے میں ایک ہے حیات یعنی زندگی کے ساتھ متصف ہے. واجب الوجود اپنے ماسوا کا موجد ہے. تغیر و حلول سے منجا اور تبدیلی و خرابی سے پاک ہے. نہ کسی کو اس سے مشابہت نہ مخلوق کے عوارض کو اس تک رسائی. ملک و ملکوت کا مالک اصول و فرق کا مبدع. کبھی گرفت والا جس کے حضور سوائے معجون کے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. ساری چیزوں کا جاننے والا. ظاہر کا بھی اور چھپی کا بھی. کل کا بھی اور کچھ کا بھی. اس کا ملک وسیع اور قدرت لا محدود. سمجھ اور سوچ سے اوپر. فضیلت آیت الکرسی.
आयतल कुर्सी सूरह बकरह की 255वीं आयत है। आयतल कुर्सी की बड़ी ही फजीलत है, उनमें से कुछ यहाँ बयान की गई है। सबसे पहले जान लेते हैं आयतल कुर्सी के 4 फजाइल। हदीस शरीफ में है कि यह आयत कुरान मजीद की आयतों में बहुत ही अजमत वाली आयत है। हजरत सैयदुना उबय बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुस्ने अखलाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अकबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू मुंजिर, क्या तुम्हें मालूम है कि कुरान पाक की जो आयतें तुम्हें याद हैं उनमें कौन सी आयत अजीम है? मैंने अर्ज किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वल हय्युल कय्यूम। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, ए अबू मुंसिर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। मुस्तदरक की एक रिवायत में है कि सूरह बकरह में एक आयत है जो कुरान पाक की तमाम आयतों की सरदार है। वो आयत जिस घर में पढ़ी जाए उस घर से शैतान निकल जाता है, और वो आयतल कुर्सी है। अमीरुल मोमिनीन हजरते अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरोबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े उसे जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा कोई चीज नहीं रोक सकती, और जो कोई रात को सोते वक्त इसे पढ़ेगा अल्लाह अज्जल जल्ला उसे, उसके घर को और उसके आसपास के घरों को महफूज फरमा देगा। आयतल कुर्सी की 5 बरकतें। जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा उसको हस्बे जैल बरकतें नसीब होंगी। वो मरने के बाद जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। वो शैतान और जिन्न की तमाम शरारतों से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। अगर मोहताज होगा तो चंद दिनों में उसकी मोहताजी गरीबी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। जो शख्स सुबह व शाम और बिस्तर पर लेटते वक्त आयतल कुर्सी और इसके बाद की 2 आयतें खालिदून तक पढ़ा करेगा, वो चोरी, गर्क आबी, पानी में डूबने और जलने से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। अगर सारे मकान में किसी ऊंची जगह पर आयतल कुर्सी लिख दी जाए जिस पर हर किसी की नजर पड़ती हो, इंशाअल्लाह उस घर में कभी फाका न होगा, बल्कि रोजी में बरकत और इजाफा होगा, और उस मकान में कभी चोर ना आएगा। आयतुल कुर्सी पढ़ने के फायदे। आयतल कुर्सी के बहुत से फायदे हैं, इनमें से कुछ फायदे हमने बयान किए हैं। आप पूरा सुनिए और इन फायदों को फॉलो करें तो इंशाअल्लाह आपको भी जरूर फायदा होगा। अगर आप बाजार में जाते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़कर निकलते हैं तो अल्लाह पाक आपको हर तरह के नुकसानात से बचाएगा। एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाजों के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह पाक आपकी अगले फर्ज नमाज तक हिफाजत करेगा। हर रात को सोते वक्त की दुआ और आयतल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत के लिए रात भर एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है। जिस शख्स के घर में आयतुल कुर्सी रोज पढ़ी जाती हो उस घर से शैतान बाहर निकल जाता है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसको जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज नहीं रोक सकती, वो मरते ही जन्नत में चला जाएगा। और जो शख्स रात को सोने से पहले इसे पढ़ेगा तो वो और उसके पड़ोसी और उसके आसपास के घर वाले शैतान और चोरों से महफूज रहेंगे। आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला सुबह से शाम तक जिन्नात के बुरे असर से बचे रहते हैं। इस आयत को खाने और पानी में फूंक डालने से बरकत होती है। जो शख्स घर में दाखिल होते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसके घर में दाखिल होते ही शैतान वहां से भाग जाता है। इस आयत को पढ़ने वाला, उसके बच्चे, उसका माल और उसके पड़ोसी महफूज रहते हैं। जो कोई आयतुल कुर्सी को सूरह बकरह की आखिरी आयतों के साथ पढ़ता है, शैतान 3 दिनों तक उसके घर में दाखिल नहीं होता है। जिन्नात ऐसा कोई बर्तन नहीं खोल सकता जिस पर वह पढ़ा हो। जो कोई भी सुबह आयतुल कुर्सी और सूरह गाफिर की तिलावत करके अपने दिन की शुरुआत करता है तो वो सुबह से लेकर शाम तक महफूज रहता है। जो हर सुबह आयतुल कुर्सी को पढ़ता है वह रात तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है।
आयतुल कुर्सी को बार बार पढ़ने से मौत के वक्त ज्यादा तकलीफ नहीं होती। अगर कोई मुसाफिर आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह अज्जल जल्ला उसके घर लौटने तक उसके लिए इस्तिगफार करने के लिए 70,000 फरिश्ते भेजेगा और उसके लौटने पर गरीबी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। सुभानअल्लाह अज्जल जल्ला। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जल जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नियत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।